Jai Hind, all my dear students. How are you all? I hope you all are fine. So today we are moving to the next chapter, chapter number 3, human reproduction. In this chapter we are going to cover the following topics. First one is your male reproductive system. Second, female reproductive system. Third, gametogenesis. In gametogenesis we will study about spermatogenesis and oogenesis. Then menstrual cycle in females, right? Then fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development. After that, parturition and lactation. So these are the following topics which we are going to cover in this chapter, right? So this chapter, human reproduction, it is of animal physiology part, right? So we will try to understand what is human reproduction, right? What is human reproduction? Now first, humans are sexually reproducing and viviparous. ह्यूमंस कैसे हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैं और कैसे हैं वो? विविपेरस हैं. विविपेरस का मतलब दे गिव डायरेक्टली टू द बर्थ, जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट बर्थ. ओविपेरस कौन से थे? एग लेंगे वाले. और जो डायरेक्ट बर्थ देंगे वो कौन से हैं? वो विविपेरस हैं, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड क्लियर दिस टर्मिनोलॉजी. फर्स्ट वन इज योर गैमेटोजेनेसिस. So gametogenesis means formation of gametes, right? Formation of gametes. Male gamete, this is the symbol of male gamete, sperm. This is the symbol of female gamete, ovum, right? Then insemination, right? What is insemination? Transfer of the sperm in the female genital tract. Transfer of sperm in the female genital tract is called insemination, right? After that, fertilization. Fertilization means fusion of the male gamete with the female gamete, right? When the male gamete fuses with the female gamete, then the zygote will form, and zygote is your 2n. 2n means your diploid condition. After that, development of blastocyst. Blastocyst means when the embryo will be of 64 cells, right? जब embryo 64 cells का होगा. It includes trophoblast and the embryoblast, right? These are the stages we will discuss when we will try to understand embryology part, right? Then implantation. What is implantation? Implantation means attachment of blastocyst. Attachment of ब्लास्टोसिस्ट विद द यूट्राइन वॉल, राइट. जब ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होगा यूट्राइन वॉल के साथ, उसके लिए क्या वर्ड आएगा? इम्प्लांटेशन. और ये कब होगा? 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट. 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन विल अकर. क्लियर? नेक्स्ट इज योर gestation. Gestation मीन्स पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, राइट. जो एम्ब्रियो का जो पूरा डेवलपमेंट है उसे क्या कहते हैं हम लोग? गेस्टेशन. नॉर्मली जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट, क्या होगा उसमें? 9 months का गेस्टेशन पीरियड हमें देखने मिलता है. देन पार्चुरेशन. व्हाट इज पार्चुरेशन? डिलीवरी ऑफ द बेबी, राइट. डिलीवरी, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसके लिए वर्ड आएगा पार्चुरेशन. देन योर लैक्टेशन पीरियड, राइट. लैक्टेशन पीरियड. Now the one word here is written is your puberty. What is puberty? Puberty means it is age of attaining sexual maturity, right? So some of the changes will takes place during the puberty. Clear? Then sperm formation continues even in ओल्ड मैन. जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो लगातार चलता रहता है मेल्स के अंदर पूरी होल लाइफ में जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो चलता रहता है. इवन इन ओल्ड मैन. फॉर्मेशन ऑफ ओवम स्टॉप्स इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 years. जो
ओवम का फॉर्मेशन है वो कब स्टॉप हो जाता है, नियरली 50 ईयर्स की एज तक वो स्टॉप हो जाता है। क्लियर। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ हमें इसमें देखने मिलेंगी, और क्या हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, राइट। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स दे आर इम्पॉर्टेंट, राइट, दे आर इम्पॉर्टेंट बट नो प्रोड्यूस गैमीट्स, वो गैमीट को नहीं बनाते। पहले तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, गोनेड्स हैं, ठीक है, गोनेड्स हैं। वो क्या बनाते हैं, गैमीट को बनाते हैं, ठीक, क्या बनाते हैं, वो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, दे प्रोड्यूस गैमीट्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, राइट, इट इंक्लूड्स गोनेड्स, इट प्रोड्यूसेस द गैमीट्स, मेल गैमीट्स, मेल, ठीक है, मेल गैमीट किससे बनेगा, टेस्टिस से, और फीमेल गैमीट ओवरी से। क्लियर। फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन ये गैमीट को नहीं बनाते। फिर जो फीमेल है, ठीक है, फीमेल के अंदर जो है कौन कौन से पार्ट, मतलब कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है ना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, राइट, मेमरी ग्लैंड्स, these are the secondary sex organs in female. Then epididymis in male, vas deferens, prostrate, seminal vesicle, right, penis, external genitalia, these are the secondary sex organs, right. फिर इसके अलावा प्यूबर्टी के टाइम पर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, लो पिच वॉइस, राइट, कैसी वॉइस होगी, लो पिच वॉइस होगी, मोर प्रोमिनेंट लैरिंग्स, लैरिंग्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स जो है, ठीक है ना, वॉइस बॉक्स है उसको क्या कहते हैं हम लोग, लैरिंग्स। हेयर्स ऑन द फेस, फेस के ऊपर हेयर्स देखने को मिलेंगे, ऑन चेस्ट, ब्रॉड शोल्डर्स, शोल्डर्स कैसे होंगे, ब्रॉड होंगे, नैरो पेल्विक, पेल्विक रीजन कैसा होगा, वो नैरो होगा, मेमरी ग्लैंड्स अंडर डेवलप, जो मेमरी ग्लैंड्स होंगी वो अंडर डेवलप होंगी, ठीक है ना, अनडेवलप होंगी, अनडेवलप होंगी, हाई BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसा होगा, वो हाई होगा। नाउ इन केस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, हाई पिच वॉइस, ठीक है, हाई पिच वॉइस होगी उसमें, लैरिंग्स लेस प्रोमिनेंट, लैरिंग्स कैसा होगा, वो लेस प्रोमिनेंट होगा। क्लियर। नैरो शोल्डर हमें देखने को मिलेंगे, फिर पेल्विस ब्रॉड होगा और बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम होगा, राइट। तो अभी तक हमने इसमें क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई एक ये सीक्वेंस है, दिस इज द सीक्वेंस वी हैव टू फॉलो, गैमेटोजेनेसिस, राइट, गैमेटोजेनेसिस है, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, देन इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन एंड देन द लैक्टेशन। ये एक तरीके से ये सीक्वेंस फॉलो होगी, ठीक है, ये वाली सीक्वेंस को फॉलो होगी। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन मेल के अंदर और ओवम का फॉर्मेशन फीमेल के अंदर। क्लियर। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इंसेमिनेशन। क्लियर, इंसेमिनेशन। देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होना, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन। फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो जब 64 सेल्स की होगी उसका कहते हैं उसको ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट। देन इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट होगा, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द यूट्राइन वॉल, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूट्राइन वॉल के साथ। ये कब हमें देखने को मिलेगा, 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन हमें देखने को मिलेगा। फिर गेस्टेशन, गेस्टेशन का मतलब क्या हुआ, पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसको क्या कहते हैं हम लोग, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। फिर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब क्या होगा, डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्लियर। देन द लैक्टेशन, देन
प्यूबर्टी हमने देखा था, प्यूबर्टी का मतलब क्या है, एज ऑफ अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्यूबर्टी कहते हैं। फिर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, ठीक है। पहले तो हमें पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में गोनैड हो गए, ठीक है ना, गोनैड हो गए, ये गैमीट को बनाते हैं, ठीक है ना, गैमीट को बनाते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को, ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को। जो मेल गैमीट होगा वो टेस्टिस से बन रहा है, ठीक है, और जो फीमेल गैमीट है वो ओवरी से बन रहा है, ठीक है। मेल गैमीट जो होगा वो स्पर्म है और फीमेल गैमीट क्या है आपका, ओवम है। क्लियर। फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के इसमें दोनों में, मेल और फीमेल में कौन कौन से हैं यहाँ पर, ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये पढ़ेंगे हम सारी चीज़, है ना, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक चीज़ों के बारे में जान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या हुआ, जैसे यूट्रस है फीमेल के अंदर, फैलोपियन ट्यूब है, वेजाइना, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेमरी ग्लैंड्स, दीज आर द secondary sex organs in female, and in case of males, epididymis, vas deferens, prostate, seminal vesicle and the penis, right. Then some changes we are able to see in the male as well as in the female। कौन कौन से ऐसे चेंजेस है जो हमें देखने को मिल रहे। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे उसमें, लो पिच वॉइस हो गई है, ठीक है, वॉइस लो पिच होती है। मोर प्रोमिनेंट लैरिंग्स, लैरिंग्स मोर प्रोमिनेंट हमें देखने को मिलेगा। हेयर्स ऑन द फेस, फेस के ऊपर हेयर्स आ गए, ठीक है, चेस्ट के ऊपर हेयर्स है। ब्रॉड शोल्डर्स, ठीक है, ब्रॉड शोल्डर्स, नैरो पेल्विक, पेल्विक रीजन नैरो होगा। फिर मेमरी ग्लैंड्स अंडर डेवलप, मेमरी ग्लैंड्स कैसे हैं वो, अनडेवलप्ड है, ठीक है ना, अनडेवलप्ड मेमरी ग्लैंड्स, हाई बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो ये किसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे, ये मेल के अंदर देखने को मिलेंगे। क्लियर। फिर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से हैं, हाई पिच वॉइस, मेल में क्या थे, लो पिच वॉइस था, ठीक है। लैरिंग्स लेस प्रोमिनेंट, वहाँ कैसा था, मोर प्रोमिनेंट। नैरो शोल्डर है यहाँ पर, वहाँ पर कैसे थे, ब्रॉड शोल्डर्स, ठीक है ना। पेल्विक ब्रॉड, ठीक है, पेल्विक रीजन कैसा है, ब्रॉड है, वहाँ पर कैसा था, नैरो था। लो बेसल मेटाबॉलिक रेट, वहाँ पर कैसा था, हाँ। Now we can easily differentiate between male secondary sexual characters, right, and the female secondary sexual characters. One by one, when we will talk about the male reproductive system, जब हम male reproductive system के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब इसको हम देखेंगे डिटेल में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। ये जितना भी मैंने आपको बताया ये सारा क्या था, एक बेसिक था जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, क्या क्या हमें जानना है इस चैप्टर में, किस तरीके से गैमेटोजेनेसिस होगा, इंसेमिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट है, इम्प्लांटेशन है, गैस्टेशन है, राइट, फिर पार्चुरेशन है, फिर लैक्टेशन है। क्लियर। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर।